अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन आफ्टर लॉन्ग गैप। आज हम सेंटर ऑफ ग्रुप पे वीडियो बनाएंगे और इसी टॉपिक को एक ही शॉट में हम क्लोज करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एक ही शॉट में हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक, तो व्हाट इज सेंटर ऑफ द ग्रुप? दिस सेट, okay, it contains all those elements of the group. Okay, all those elements of the group. Z belongs to G, which commute with every element of the group. Okay, so we can say that it may be a subgroup of a group. In fact, it is a subgroup of a group. Okay, because it contains the elements of the group, and we will show in future that it is a subgroup. It is in fact a subgroup. Okay, so I will take an example. Okay, suppose I will take G equal to group of integers. Okay, so we know that it's a group under addition. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर ऑफ Z. So it means those elements of Z which commute with every element of Z. मतलब those integers which are commutative with every integer. So if we take one, say we will take one commute with every element of Z, one commute with every integer. So if we take 2 3 so on, these are the elements which commute with every integer. So we can say that कि जो ये center of the group of integers है, इसमें सारा ही group आ जाएगा. ठीक है, because every integer commutes with every integer under addition, in fact under multiplication also. Okay, in the same way we can say that center of R, and we know that this set of real numbers is a group under addition. So इसमें भी क्या आ जाएगा? सारा ही सेट आ जाएगा. Every real number commutes with every real number under addition. In the same way we can say that center of Q, इसमें भी सारा Q ही आ जाएगा. Similarly center of complex numbers, it's a group under addition, इसमें भी सारा ही C आ जाएगा. So if you see clearly that these groups Z, R, Q, C, these are the groups but which are abelian groups. So we can say that if a group G is abelian, its center is itself. So आपके पास एक रिजल्ट मिला कि अगर आपके पास एक ग्रुप है abelian, if G is an abelian group, if G is an abelian group, then center of G is always equal to G. ठीक है, अब आप मुझे बताइए इसका सेंटर ऑफ Zn, group of integers under addition modulo n, and we know that Zn is abelian, it's cyclic, so we can say that its center will be Zn. If you are asked to find the number of elements in the center of Z4, तो क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा, बिकॉज इसका जो सेंटर होगा वो Z4 ही आ जाएगा. उसका जो ऑर्डर है, मतलब उसमें एलिमेंट जो है वो 4 है, इसीलिए उसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन मॉड्यूलो n is always equal to n. Okay, so center of Z4, Z5, Z6 is always equal to Z6. क्यों? Because this is abelian.
एंड इस पर हमने प्रूफ भी दिया है, आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इफ वी टेक नाउ सेंटर ऑफ एस एन, ग्रुप ऑफ सिमिट्रीज, है ना, और वी कैन से दैट इट्स अनदर नेम इज सिमिट्रिक ग्रुप और द परमिटेशन ग्रुप. Okay, permutation group. So if we take Sn, if we take Z of S1, जो S1 है इसमें तो एक ही एलिमेंट है ना, आइडेंटिटी, एंड इट्स एबिलियन. ओके, बिकॉज इसका ऑर्डर 1 है तो एबिलियन है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो सेंटर होगा वो S1 ही होगा. ओके, अब आप मुझे बताइए सेंटर ऑफ S2, इसका जो ऑर्डर है वो है 4, एक है आइडेंटिटी, है ना, नहीं, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 आइडेंटिटी और 1 2, तो इसका भी होगा सेंटर S2 बिकॉज दिस एबिलियन. नाउ अब आप मुझे बताइए सेंटर ऑफ S3, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 6. S3 पर आप जाइए, इस पर मैंने बात की है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, तो इसका जो सेंटर है, मतलब कौन सा एलिमेंट है S3 में जो सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है S3 के एलिमेंट्स के साथ. ओके, तो एक ही एलिमेंट आपको मिलेगा, वो है आइडेंटिटी, बाकी कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा. सपोज I will show it by an example. देखिए, क्या इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है? आई विल टेक एन एग्जाम्पल कि सपोज इसमें 1 2 भी है, सपोज 1 2 भी इसमें है, सेंटर ऑफ S3, तो इसका क्या, अगर ये इसमें है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है. नाउ आई विल टेक एग्जाम्पल, क्या ये इसके साथ कम्यूट कर सकता है 1 2 1 2 3, इस पर आप बात कीजिए. अब देखिए आप, ये होगा, अगर आपको 1 की इमेज देखनी होगी, 1 की इमेज क्या है यहां पर 2, और यहां पर है 2 की इमेज 1, तो मैं इसको नहीं लिखूंगा. ओके, अब देखिए 2 की इमेज 3 है और इसमें 3 नहीं है, तो 2 की इमेज 3 ही होगी बस. अब अगर आप 3 की इमेज देखेंगे, 3 की इमेज है 1 की इमेज है 2, तो इसका मतलब 3 की इमेज 2 है, तो ये सही है 2 3. नाउ क्या ये इसके साथ कम्यूट करेगा, मतलब क्या 1 2 3 1 2 के बराबर है? नाउ वी विल सी. नाउ सी द इमेज ऑफ 1, हम यहां पर पहले 1 लिखेंगे. ओके, नाउ 1 की इमेज 2 है और इसकी इमेज है 3, तो इसका मतलब है 1 की इमेज 3 है. नाउ सी द इमेज ऑफ 3, इसमें 3 नहीं है, तो 3 की इमेज 1 है, तो 3 की इमेज 1 है, तो ये बंद होगा. तो इसका क्या मतलब है, 1 2 जो है ये 1 2 3 के साथ कम्यूट नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटर ऑफ S3 में नहीं आ जाएगा. ओके, इन द सेम वे 1 2 3 भी सेंटर में नहीं आ जाएगा. क्यों? यहीं से आपको मालूम होगा कि 1 2 3 1 2 के साथ कम्यूट नहीं करता है, तो 1 2 3 भी इसमें नहीं आ जाएगा. इन द सेम वे 2 3 1 3 ये भी इसमें नहीं आ जाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेंटर ऑफ S3 है, इसका जो सेंटर होगा वो आइडेंटिटी होगा. ओके, नाउ व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ S4? S4 की हम बात करेंगे. सेंटर ऑफ S4, यू कैन चेक दैट इसका भी सेंटर होगा आइडेंटिटी, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक ही एलिमेंट होगा. सो यू कैन से दैट कि Z ऑफ Sn, सिमेट्रिक ग्रुप, इसका जो सेंटर होगा वो होगा
एस एन ही, कब? अगर आपके पास n इक्वल टू 1 और 2 है। क्यों? बिकॉज एट 1 and 2 S1 and S2 आर एबिलियन, और इसका जो सेंटर होगा वो होगा आइडेंटिटी, लेकिन कब? फॉर n ग्रेटर और इक्वल टू 3। बहुत ही आसान है, इस पर हमने, अगर आपको इस टॉपिक को डिटेल में जाना है कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, इसमें कौन सी ऑपरेशन है, ये एबिलियन है नहीं है, साइक्लिक है नहीं है, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको डिटेल में पढ़िए। जो फोल्डर है मेरा, उसमें ये बहुत ही एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लेंगे एक और ग्रुप, सेंटर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप, Z ऑफ AN। इस पर भी बात हो चुकी है। तो अगर आपके पास A1 होगा, A1, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज आइडेंटिटी, मतलब ये एबिलियन है ना। तो सेंटर ऑफ A1 क्या होगा? सेंटर ऑफ A1 होगा आइडेंटिटी। नाउ A2 की बात करेंगे, तो A2 में क्या होगा? इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो Sn में एलिमेंट्स थे उसमें हाफ लेने हैं, ओनली इवन परमिटेशंस। तो इसका भी ऑर्डर एक ही होगा, दैट इज आइडेंटिटी। तो सेंटर ऑफ A2 ये भी एबिलियन है, तो इसका सेंटर आइडेंटिटी होगा। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड A3, सेंटर ऑफ A3, सेंटर ऑफ A3 में, अब आप मुझे यहां पर A3 में कौन कौन एलिमेंट्स आ जाएंगे? A3 एक तो आइडेंटिटी आ जाएगी, क्या 1 2 आ जाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो ऑड परम्यूटेशन है। 1 2 भी नहीं आ जाएगा, 1 3 भी नहीं आ जाएगा, 2 3 भी नहीं आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इसमें एक ही ट्रांसपोजिशन है ना, साइकिल ऑफ लेंथ 2। बट इसमें 1 2 3 आ जाएगा, क्यों? इसमें इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, 1 3 1 2, है ना। इन द सेम वे 1 3 2, बस इतने ही आ जाएंगे। ये भी इवन परम्यूटेशन है, ये भी इवन परम्यूटेशन है, ये भी इवन परम्यूटेशन है। तो इसका जो ऑर्डर है वो है 3, दैट्स एबिलियन, आल्सो साइक्लिक। सो सेंटर ऑफ A3 क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ A3 भी 3 ही आ जाएगा, सॉरी A3 आ जाएगा। अब इसके बाद A4 जो होगा ना, A4 उसमें होंगे आपके पास एलिमेंट्स कितने? S4, मतलब 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, दैट्स 12, एंड ओनली इवन परम्यूटेशंस, नॉट ऑड परम्यूटेशंस। ओके, तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा आइडेंटिटी। You can easily see that only identity is the element in A4 which commutes with every element of A4. Identity. In the same way, center of A5, center of A6 is always identity. So we can say that center of AN is equal to AN for n equal to 1 2 3, and it's equal to identity for n greater or equal to 4. ओके, तो ये हो गया सेंटर ऑफ SN, सेंटर ऑफ एबिलियन ग्रुप, सेंटर ऑफ AN, सेंटर ऑफ ZN, सेंटर ऑफ Z, सेंटर ऑफ Q, सेंटर ऑफ R, एटसेट्रा। तो इसके बाद इसमें एक और टॉपिक है सेंटर ऑफ DN। ओके, तो इसको मैं आपके सामने कल लाऊंगा, तब तक आप इसको अच्छी तरह से देखें, समझे और डीप जाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मतलब सतही तौर पर नहीं समझना है चीजों को, बल्कि डीप जाने की जरूरत है। ओके, तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।